Good morning to all. Welcome to Suresh Gyan Bihar University. लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे what are the basic steps in PERT or CPM. Okay. First is planning. What is planning? The planning phase is started by splitting the total project into small projects. These smaller projects in turn are divided into activities and are analyzed by the department or section. The relationship of each activity with respect to other activities are defined and established, and the corresponding responsibilities and the authority are also stated. क्या बोल रहा है प्लानिंग में क्या होगा? सबसे पहले तो जो टोटल प्रोजेक्ट है, ओवरऑल प्रोजेक्ट है, जो भी डेवलप करना है उसको स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट्स में या स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देंगे. ठीक है, स्प्लिट कर देंगे. These smaller projects in turn are divided into activities and are analyzed by the department or section. अब ये जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं इनको अगेन एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया जाएगा जिनको आगे फर्दर एनालाइज किया जाएगा. ओके. The relationship of each activity with respect to other activities are defined and established. ठीक है. And the corresponding responsibilities and the authority are also stated. अब ये जो भी डिफरेंट डिफरेंट जो सब प्रोजेक्ट्स हैं इनको भी जो हमने एक्टिविटीज में डिवाइड किया था, ये क्या है? ये जो एक दूसरे से एक्टिविटीज लिंक्ड होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, या उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो वो भी डिफाइन किया जाता है. मतलब ये तो फिक्स होगा ही ना भाई, एक ही प्रोजेक्ट को जब उसके सब पार्ट्स में या अदर सब पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन तो होगा ही, उसे भी डिफाइन किया जाएगा. अगर नहीं डिफाइन किया हुआ होता है तो उसे डेवलप किया जाता है, बनाया जाता है. और कौन करता है ये सारा काम? जो भी उसकी अथॉरिटीज होती हैं या एडमिनिस्ट्रेटर होता है. ओके. Thus, the possibility of overlooking any task necessary for the completion of project is reduced substantially. Sorry. Okay. Next is scheduling. Scheduling में क्या हो रहेगा? The ultimate objective of the scheduling phase is to prepare a time chart showing the start and finish times of for each activity as well as its relationship to other activities to the project. ठीक है. सबसे पहले मेन जो ऑब्जेक्टिव है, मेन टास्क क्या होगा शेड्यूलिंग का? ये होगा कि scheduling phase is to prepare a time chart showing the start and finish times. ठीक है. एक चार्ट प्रिपेयर किया जाता है जिसमें उस जितनी भी उसमें एक्टिविटीज थी उन सब के स्टार्ट और फिनिशिंग टाइम्स को उसमें नोट किया जाता है टाइम चार्ट के अंदर. साथ के साथ जो डिफरेंट डिफरेंट वेरियस एक्टिविटीज होती है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, इसके बारे में भी टाइमिंग आती है. ठीक है.
कितनी देर क्या रिलेशन रखता है ये सारा. Moreover, the schedule must pinpoint the critical path activities which require special attention if the project is to be completed in time. ठीक है, critical path मतलब क्या हो गया, जब वो पर्टिकुलर एक्टिविटी के ऊपर काम किया जा रहा हो. ठीक है, तो जैसे सपोज कोई एक्टिविटी है. ठीक है, उस एक्टिविटी को सब एक्टिविटीज में डिवाइड कर लिया गया है. अब वो जो सब एक्टिविटीज हैं या उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के बारे में अगर हम बात करें कंबाइंड फॉर्म में, तो वो एक्टिविटी को डेडलाइन में देना होता है. अगर ठीक है उसे परफॉर्मली with full performance, we have to, if we perform if we want to perform that activity with full performance, okay, and in time, at that condition we have to focus on that activity. Okay, for non-critical activities the schedule must show the amount of slack or float times which can be used advantageously when such activities are delayed or when limited resources are to be utilized effectively. जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज है, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी मतलब जिन पे प्रेजेंट में काम नहीं हो रहा है. ठीक है, तभी जिन पे काम लगने में टाइम लगता है. The schedule must show the amount of slack or float times which can be used advantageously when such activities are delayed. ठीक है, allocation of resources. अब इसमें क्या आएगा, allocation of resources में allocation of resources is performed to achieve the desired objective. अब क्या मतलब हुआ allocation of resources का मतलब ये हो गया कि जैसे कोई भी अगर प्रोजेक्ट या एक्टिविटी को परफॉर्म कराना है तो उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज की नीड रहेगी, तो वो सारे अलोकेट कराने होते हैं. A resource is a physical variable such as labor, finance, equipment, or industries which will impose a limitation on time for the project. ठीक है, on depending on the resource प्रोजेक्ट के कंप्लीशन का टाइम फिक्स होगा. ठीक है, जैसे सपोज अगर दो प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है. ठीक है, लेकिन अगर दोनों को एक रिसोर्स है, प्रिंटर प्रिंटर की नीड है, तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी वो प्रिंटर फर्स्ट यूज मिलेगा. ओके, resource allocation usually occurs in a compromise and the choice of this compromise depends on the जजमेंट ऑफ मैनर्स. ठीक है, अब कौन सा एक्टिविटी या कौन सा प्रोजेक्ट पहले रिसोर्स में यूज मिलेगा ये मैनेजर जनरल फिक्स करता है. नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग. The final phase in the project management is controlling. Critical path methods facilitate the application of the principle of management by expectation or to identify areas that are critical to the completion of the project. Okay, by having progress reports from time to time and updating the network continuously, a better financial as well as technical control of the project is exercised. Arrow diagrams and the time charts are used for making periodic progress reports. If required, a new course of action is determined for the remaining portion of the project. ठीक है, एरो डायग्राम जो होते हैं वो क्या डिनोट करते हैं, टाइम चार्ट्स को. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फ्रेमवर्क फॉर PERT एंड CPM. आप एक बार ये स्टेप्स को नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम इनको डिस्कस करेंगे. 6 पॉइंट्स है.
ये फटाफट से नोट कर लीजिए।
Essentially, there are 6 steps which are common to both the techniques. The procedure is listed below. ठीक है, इसके लिए क्या क्या steps follow करने पड़ेंगे? First, define the project and all of its significant activities or tasks. The project made up of several tasks should have only a single start activity and a single finish activity. इसका क्या मतलब हुआ? अब जैसे शुरू से हम देखते आ रहे हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए या कोई भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को बनाने के लिए उसे सब प्रोग्राम्स या सब मॉड्यूल्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। लेकिन जब भी कुछ स्टार्ट करेंगे तो वो एक सिंगल स्टार्ट होना चाहिए, और जब उसे फिनिश करेंगे तो एक सिंगल फिनिश होना चाहिए। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब स्टार्ट करेंगे तो वो उसे एज अ सिंगल एक्टिविटी या सिंगल प्रोजेक्ट की तरह से स्टार्ट करेंगे, और जब एंड करेंगे तब भी उसे एक सिंगल प्रोजेक्ट की तरह से एंड करेंगे, मतलब कंबाइंड फॉर्म में एंड करेंगे। ये नहीं कि उसकी एक्टिविटीज सारी अलग अलग शो, मतलब इंटरनल में सारी एक्टिविटीज डिफरेंट डिफरेंट वर्क करेंगी, सेपरेट सेपरेट वर्क करेंगी, लेकिन एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग दे वर्क्स लाइक अ सोलो और सिंगल project. Okay, develop the relationships among the activities, decide which activities must proceed and which must follow others. Okay, draw the network connecting all the activities. Each activity should unique event numbers. Dummy arrows are used where required to avoid giving the same numbering to two activities. Assign time and or cost estimates to each activity. ठीक है, ये सारा मतलब वही है जो हम अभी तक करके आए हैं. Compute the longest time path through the network, that is called critical path. Use the network to help plan, schedule, and monitor and control the project. Okay, the key the key concept used by CPM PERT is that a small set of activities which make up the longest path through the activity network control the entire project. ठीक है. If these critical activities could be identified and assigned to responsible persons, management resources could be optimally used by concentrating on the few activities which determine the fate on the entire project. ठीक है. जब भी किसी प्रोजेक्ट को छोटी छोटी एक्टिविटीज में डिवाइड किया जाता है तो उन्हें स्मॉलेस्ट सेट ऑफ एक्टिविटीज, मतलब कम से कम एक्टिविटीज में डिवाइड किया जाए, जिससे कि क्या हो, वो ही आपके क्रिटिकल पाथ पे वर्क कर सके. ओके. और जब वो किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन को असाइन की जाती है तो भी क्या होता है? ये होता है कि जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट रहती है वो मैनेज्ड फॉर्म में रहती है और ऑप्टिमल रहती है. मतलब क्या वो ऑप्टिमल? मतलब कम से कम रिसोर्सेज की नीड होती है. ओके. नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज कैन बी replanned, rescheduled, and resources for them can be reallocated flexibly, okay, without affecting the whole project. Now, network diagram representation. If a network diagram representation of a project, certain definitions are used. First is activity. Activity क्या होगा? Any individual operation which utilizes resources and has an end and a beginning is called activity. Okay, an arrow is commonly used to represent an activity with its head indicating the direction of progress in the project. Okay, activities are again further classified into 4 categories. First is predecessor activity, then successor, concurrent, and dummy activity.
प्रीडिसेसर एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटीज दैट मस्ट बी completed immediately prior to the start of other activity are called predecessor activities. सक्सेसर एक्टिविटीज इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मतलब किसी भी एक्टिविटी के जस्ट बाद में जो नेक्स्ट एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी वो सक्सेसर, और जस्ट पहले की जाएगी वो प्रीडिसेसर। कॉन्करेंट जो साथ साथ में अकम्प्लिश की जाएंगी, ठीक है। और डमी क्या होगी? एन एक्टिविटी विच डज नॉट कंज्यूम एनी काइंड ऑफ रिसोर्स बट merely depicts द टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस इज कॉल्ड अ डमी एक्टिविटी। ठीक है, जो एक्टिविटी कोई रिसोर्सेज तो नहीं लेती है लेकिन वो किसी ना किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड रहती है, तो वो आपका हो गया डमी एक्टिविटी। डमी एक्टिविटी इज इंसर्टेड in the network to clarify the activity pattern in the following two situations. First situation is to make activities with common starting and finishing point distinguishably. ठीक है कि जो आपका स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट है वो तो कॉमन रहेगा सारी एक्टिविटीज के लिए, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस रहेगा। मतलब ये नहीं कि स्टार्ट ही फिनिश पॉइंट कर दिया जाए, स्टार्ट पॉइंट अलग होगा, फिनिशिंग पॉइंट अलग होगा। टू आइडेंटिफाई और मेंटेन द प्रॉपर प्रेसिडेंस रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिविटीज। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल है। कंसीडर अ सिचुएशन वेयर ए एंड बी आर कॉन्करेंट एक्टिविटीज। ओके, सी इज डिपेंडेंट on A and D is dependent on A and B both. Such a situation can be handled by using dummy activity as shown in the figure. ठीक है, तो 3 to 4 के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं था, तो वहां पे क्या बना दिया है? डमी एक्टिविटी, क्योंकि इसे फिनिश भी तो करना पड़ेगा इसलिए। नेक्स्ट इज इवेंट। इवेंट में क्या होगा? द इवेंट रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट इन टाइम signifying the completion of some activities and the beginning of new ones. This is usually represented by a circle in a network, which is also called a node or connector. Event वही हो गया जो अभी तक हम शुरू से पढ़ते आए हैं। इवेंट या फिर जो भी नोड्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? आपके इवेंट्स होते हैं जिनके के बीच में कनेक्शन करना होता है। अब यहाँ पर 3 टाइप्स की कैटेगरीज है, ठीक है। मर्ज इवेंट, बर्स्ट इवेंट एंड मर्ज एंड बर्स्ट इवेंट। मर्ज इवेंट मतलब कि when more than one activity comes and joins an event, such an event is known as merge event। मतलब अ, ये एक सर्किल से डिनोट होता है, तो उस सर्किल पर जब वन से ज्यादा एक्टिविटीज एक्टिव होती हैं, वर्क करती हैं या अलोकेट होती हैं, तो वो क्या होता है? मर्ज। अब एक से ज्यादा जब उससे बाहर आती हैं, आउटसाइड जाती हैं, दो एक्टिविटीज फिनिश होती हैं एक साथ, ठीक है, तो वो होता है आपका बर्स्ट। और जब दोनों एक साथ होते हैं तो वो होता है आपका मर्ज एंड बर्स्ट। An activity may be merge and burst event at the same time as with respect to some activities it can be a merge event, and with respect to some other activities it can be a burst event. Okay, next is sequencing. Now what is sequencing? The first prerequisite in the development of network is to maintain the precedence relationships। ठीक है, prerequisite मतलब सबसे पहली रिक्वायरमेंट। ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट रहेगी? कि जितनी भी एक्टिविटीज है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो उस रिलेशनशिप के बीच में प्रेसिडेंसी फिक्स की जाएगी कि हाँ ये वाला रिलेशन ज्यादा प्रायोरिटी पे रहेगा, तरह से। ठीक है, in order to make a network the following points should be taken into considerations: what job or jobs preceded, concurrent, follow,
ठीक है, ये सारा सीक्वेंसिंग के अंदर आएगा। रूल्स फॉर ड्राइंग नेटवर्क डायग्राम। फर्स्ट में क्या है, ईच एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय वन एंड ओनली वन एरो इन द नेटवर्क। ठीक है, no two activities can be identified by the same end events। ठीक है, यहाँ पर ये मर्ज और बर्स्ट दोनों को दिखा रहा है। मर्ज ए एंड डी है और बर्स्ट है बी और सी एक्टिविटी है। नेक्स्ट रूल में क्या है, इन ऑर्डर टू इंश्योर द करेक्ट प्रेसिडेंस रिलेशनशिप इन द एरो डायग्राम फॉलो द क्वेश्चंस। What activity must be completed immediately before this activity can start? What activities must follow this activity? What activities must occur simultaneously with the activity? ठीक है, मतलब वही हो गया कि कौन सी मर्ज एक्टिविटी होनी चाहिए, कौन सी बर्स्ट होनी चाहिए, या फिर कौन सी मर्ज और बर्स्ट दोनों में हो सकती है पैरेलली। ठीक है, इन केस ऑफ लार्ज नेटवर्क इट इज एसेंशियल that certain good habits be practiced to draw an easy to follow network. Try to avoid arrows which cross each other. Use straight arrows. Do not attempt to represent duration of activity by its arrow length. Use arrows from left to right. Avoid mixing two directions. Vertical and standing arrows may be used if necessary. Use dummies free in rough draft, but final network should not have any redundant dummies. ठीक है, the network has only one entry point called start event and one emergence called the end event. Common errors in drawing networks. अब इसमें क्या errors आ सकती है? First is dangling. देखो 3 टाइप की एरर्स हो सकती है। फर्स्ट इज डैंगलिंग, सेकंड इज लूपिंग एंड थर्ड इज रिडंडेंसी। ठीक है, तो जो फर्स्ट है डैंगलिंग, डैंगलिंग का मतलब क्या होता है, लटकते हुए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 5 एंड 10 और 6 और 7, इनका कोई किसी से कनेक्शन है, जैसे 10 है और 7 है, इनका कोई अदर डमी एरो भी नहीं लगाया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डैंगलिंग हो गया, क्योंकि जो 10 है वो फर्दर किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, ये यूं ही हवा में लटका हुआ है, एक तरह से यूं समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डेंगल हो गया। ओके, मतलब इनकी स्टार्टिंग एक्टिविटी तो है लेकिन एंडिंग एक्टिविटी नहीं है। सो द डायग्राम इज रॉन्ग एंड इंडिकेट्स द एरर ऑफ डैंगलिंग। नेक्स्ट इज लूपिंग, इसके अंदर लूपिंग भी नहीं होनी चाहिए। लूपिंग एरर इज ऑल्सो नोन एज साइक्लिंग एरर in a network diagram. Drawing an endless loop in a network is known as error of looping as shown in the following figure। ठीक है, लूपिंग भी नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। नेक्स्ट है रिडंडेंसी। ठीक है, रिडंडेंसी में क्या है, unnecessarily inserting the dummy activity in network logic is known as error of redundancy as shown in the following figure।
जैसे यहाँ पर ये डैंगलिंग एक्टिविटी दिखा दी है जबरदस्ती, यहाँ पर डमी एक्टिविटी की कोई नीड नहीं थी। ठीक है, 10 और 12 में तो स्ट्रेट एरो अपने आप ही आ जाएगा, तो यहाँ तो डमी एक्टिविटी की कोई नीड ही नहीं थी। अब जैसे जबरदस्ती अगर डमी एक्टिविटी लगाए तो रिडंडेंसी एरर आ जाता है। नाउ नेक्स्ट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब क्या इसके एडवांटेजेस होंगे? फर्स्ट एडवांटेजेस देखते हैं। A PERT CPM chart explicitly defines and makes visible dependencies, precedence relationships between the elements. क्या मतलब हुआ इसका? इसके अंदर ये एडवांटेज रहा इसके अंदर कि जितनी भी एक्टिविटीज हैं, सब एक्टिविटीज या एक्टिविटीज, वो सब किस तरह से एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहती हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिडेंस। ठीक है, तो ये सारा विजिबल होता है। ठीक है, PERT CPM फैसिलिटेट्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रिटिकल पाथ एंड मेक्स दिस विजिबल। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि सारी चीजें ट्रांसपेरेंट रहती हैं, जिससे यूजर को कोई भी काम करने में प्रॉब्लम ना आए, उसे समझ में आता रहे कि हाँ कहाँ पर कैसे क्या वर्क किया गया है और उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। PERT CPM facilitates identification of early start, late start, and slack for each activity, provides for potential reduced project duration due to better understanding of dependencies, leading to improved overlapping of activities, है ना। नेक्स्ट एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? Disadvantages हैं इसके, when the PERT CPM charts become unwieldy, they are no longer used to manage the project। ठीक है, unwieldy मतलब जब वो किसी के लिए ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है तो वो यूजफुल भी नहीं रहता है। ठीक है, द लैक ऑफ अ टाइम फ्रेम ऑन मोस्ट PERT CPM charts make it harder to show the status, although colors can help. The network charts tend to be large and unwieldy, requiring several pages to print and requiring special size paper. Okay, मतलब काफी बड़ा होता है। There can be potentially hundreds or thousands of activities and individual dependency relationships. Now, critical path in network analysis इतना है ये काफी बड़ा है, इसको हम अभी स्टार्ट नहीं करें। ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं कोई सारे टॉपिक्स पढ़े ही हैं। इसलिए हम उनकी वर्किंग पढ़ेंगे, फिर ये एग्जाम्पल हमें समझ में आएंगे। ठीक है, अब कोई देख लीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पे आप नोट डाउन कर लीजिए।
Okay.